Hello students, this is Sarfraz after a long time, near about 1 month. Uh, so today I have brought one more very important thing, that is conditional sentence. Generally, we people are making a lot of mistakes while writing the sentence or starting the sentence with if. Even the students of class 11 and 12th, while writing their speech or uh, debate, in those cases generally they are making a lot of mistakes. So just see, if conditional, that is written here. You can see the title. I have just taken a photo from one of book or grammar book. Okay, read this sentence here. See how the word if is used to talk about different conditions. I will bring him in a cab if I have to carry him down to it. I will bring, मैं लाऊंगा. I will bring him in a cab if I have to carry him down to it. So you can see in the first part of the sentence, if I'm breaking the sentence here. So I'll bring, मैं लाऊंगा, in a cab. So first one is will, and will plus v1 is there, and in the second part you can see I have to carry him down to it. Okay, so this is a very general sentence कि मैं लाऊंगा उसको कैब में if I have to carry, अगर मुझे लाना होगा, if I have to carry him down to it. Next sentence is, you can say, if you could persuade him to come here and give us the benefit of this unique experience of this situation, I cannot doubt that he could help me. This is a very long sentence. If you could persuade, so you can see could persuade, and in the second part cannot doubt. So all these sentences shows the condition. All these sentences shows the condition that if you could persuade him to come here and give us the benefit of this unique experience of this situation, अगर उसे आप persuade करके लाते हो यहाँ पर और उसे बताते हो give us the benefit of his unique experience of this situation, I cannot doubt that he could help me. I cannot doubt, so without any doubt, I cannot doubt that he could help me. So both the sentences shows the conditional sentences. What is conditional sentences? Here it is written, you can see. Conditional sentences use the word if, and condition means situation or circumstance. If a particular condition is present, then a particular result happens. Okay. There are 4 types of conditional sentences, you can see. The first one is its number is 0. Okay, so if simple sentence, then clause 2 would be simple present. So generally 0 conditional, or this is the first type of conditional. Okay, so that is fact based. If plus simple present, so the first would be if plus subject प्लस v1 और v5. अगर तुम हीट देते हो पानी को तो पानी उबलने लगता है, इट्स लाइक दैट. ठीक है. इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को हीट देते हो तो वो मेल्ट, मतलब वो पिघलने लगता है. सो दिस इज़ अ फैक्ट. सो फर्स्ट काइंड हुआ हमारा, फर्स्ट टाइप हुआ कि सब्जेक्ट एंड v1 and v5 in the first part, and after comma, after this, after first clause there would be a comma, and after comma there would be the same formula, subject plus v1 or v5. So this is the first kind of conditional sentence. Now the second one, if simple, if present simple or simple present. Okay, if another word would be will plus v1, like if it rains, so if plus subject plus v1 or v5 comma, then subject plus
विल शैल प्लस V1। अंडरस्टूड। सो दिस इज द सेकंड टाइप कि अगर कंडीशन सेंटेंसेस में अगर आप बनाना ही चाहते हो तो या तो दोनों को प्रेजेंट में रखो, इफ़ के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोमा के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रखना चाहते हो देन इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फार्मूला रखो, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V5 लगाओ, सॉरी, एंड कोमा के बाद तुम फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दो, विल शैल लगा दो, विल शैल V1 कर दो, वी शैल V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये दूसरा टाइप हुआ। जैसे कि यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जांपल देख सकते हो, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, होती, इट विल रेन यहाँ भी लिख देते हो तुम लोग, एंड वी विल कैंसिल वहाँ भी लिख देते हो, विल, दोनों जगह विल लिख देते हो। कहते हो सरफराज मिस्टेक कहाँ हुआ? मिस्टेक यहाँ हुआ कि फर्स्ट पार्ट इफ़ से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है जनरली वो, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हो तो फर्स्ट पार्ट अगर तुम प्रेजेंट रखे हो तो सेकंड वाला भी प्रेजेंट रखो, या तो सेकंड वाला क्या बोलते हैं इंडेफिनिट रखो, फ्यूचर इंडेफिनिट रखो, विल शैल V1 रखो। अगर नहीं तो दोनों को प्रेजेंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है कि इफ़ इट रेन्स टुमारो वी कैंसिल द मैच, विल को हटा दो। ये सिंपल रूल होता है। यही ज़्यादा तुम अगर ज़्यादा दिक्कत है तो या तो तुम इसको ज़्यादा यूज़ करो, या तो अगर तुम्हें समझ में आ गया है कि नहीं मतलब फर्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 V5 यूज़ कर सकते हैं, कॉमा देकर हम विल शैल V1 यूज़ कर सकते हैं, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट, और यू कैन सी द थर्ड टाइप, आफ्टर इफ देयर वुड बी subject V2 then comma, then second sentence would be not will, because now it's come subject would, understood, would V1। अगर आपका सेंटेंस यहाँ पे V1 और V5 था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था सपोज, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे विल V1 लिखा था, लेकिन जैसे ही हमने V2 यहाँ लिखा तो यहाँ पे would V1 कर दिया। कोई पूछेगा सर ये वुड के बाद V1 क्यों लग रहा है? सर दिस इज़ अ मॉडल वर्ब एंड ऑल मॉडल वर्ब्स कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो तो ये रूल याद रहे कि विल का, जैसे यहाँ पे V1 का V2 हमारा पास्ट हो जाता है। अगर वो सेंटेंस आप बना रहे हो, पास्ट में कंडीशन सेंटेंस बना रहे हो, देन अगर यहाँ V2 यूज़ किए हो तो यहाँ वुड यूज़ करोगे, विल यूज़ नहीं करोगे। और ये ऐसा नहीं है कि वुड नहीं यूज़ करोगे या यहाँ V2 यूज़ कर देना, ऐसा मत करना। ये सिर्फ प्रेजेंट में रूल था कि हाँ दोनों प्रेजेंट में है तो दोनों प्रेजेंट में रख सकते थे, इफ़ के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोमा के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है। पास्ट में ऐसा है कि अगर पास्ट में आपने यूज़ किया सब्जेक्ट V2, देन आपका कोमा के बाद वुड V1 लगेगा। देन आते हैं फोर्थ टाइप को देखते हैं। फोर्थ टाइप में हमें क्या मिला, इफ़ हैड थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल मैं भूल गया था सेकंड वाले में, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मैं एक लॉटरी जीत गया, ठीक है, या जीत जाता, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाई अ चॉकलेट फैक्ट्री, तो मैं क्या करता, अनरियल है ना, जीता तो नहीं ना, जीत जाता तो ऐसा करता, ठीक है, जीता नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फैक्ट्स था, सेकंड वाला फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तीसरा वाला भाई मतलब ऐसा सिचुएशन है जो हुआ नहीं है। अगर मैं मतलब इफ़ आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्ज़ाम आई वुड पास द एग्ज़ाम, हो सकता है मैं अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करता तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाता, या ठीक है हो जाता, पास हो जाता। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट वाली बात। तो पास्ट परफेक्ट में हमारे साथ क्या टेंशन है, हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में इफ़ तो होगा, सब में है, सब्जेक्ट होगा, और ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड होगा। जब हैड थर्ड फॉर्म होगा तो कोमा के बाद क्या आएगा, इससे पहले हमारा यहाँ सेकंड फॉर्म था, तो जब सेकंड फॉर्म था तो वुड आया था, हैड थर्ड फॉर्म आया है तो अब वुड भी आ सकता है, लेकिन वुड की जगह पे कुड और माइट भी आ सकता है, तो वुड हैव आएगा, ये याद रखेंगे। वहाँ पे सिर्फ वुड आया था जब सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट के बाद इफ़ के साथ, अगर फर्स्ट क्लॉज में, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में हमको वुड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके साथ हैव लाना होगा। हाँ, अगर आप वुड के जगह पे कुड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, माइट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यू कैन सी इफ़ दे हैड बीन ऑन टाइम, अगर वो लोग टाइम पर होते, पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है, अगर ऐसा होता कि इफ़ दे हैड बीन ऑन टाइम दे वुड हैव कॉट द बस, वो बस पकड़ लेते, उनको बस मिल जाती। पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है जो हुआ नहीं है,
पिछले वाला भी वही था, पास्ट सिंपल था जो कि हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन यही हुआ जो हमें समझ में आया कि यहाँ पर हमें V1 या V5 है, यहाँ भी V1 और V5 है, यहाँ हमारा V1 और V5 तो है, बट यहाँ विल शैल V1 है, विल प्लस V1 है। यहाँ पे हमारा V2 है, तो यहाँ हमारा विल नहीं है बल्कि वुड V1 है। जैसे ही हमारा V2 से हैड थर्ड फॉर्म हुआ है, जैसे ही हैड थर्ड फॉर्म हुआ है, हमने यहाँ विल वुड को रखा है, लेकिन वुड के साथ साथ एक और लाया है हैव। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। अब आपको देखना है यहाँ क्या होगा। इफ़ यू हीट, यहाँ पर इफ़ यू हीट है तो यू हमारा सब्जेक्ट है एंड हीट हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो जब सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो आने वाला भी क्या होगा, या तो वो V1 या V5 होगा, या तो विल V1 होगा। दो ही कंडीशन हो सकता है, पास्ट तो हो नहीं सकता। तो वुड वाला यहाँ कट हो गया, वुड है वाला भी कट हो गया, तो हमारा वो इट बॉयल्स वाला सही हो गया, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इसको पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।